Today we are going to cover the topic which is equation of motion, but we are going to discuss it in terms of its normal and tangential coordinate system. Just a quick review of what we did last time. At the start of this chapter, which is kinetics of a particle, kinetics का मतलब क्या है कि we are going to now include forces as well in order to perform the analysis of a particle. Now this method of kinetics, which is force and acceleration method, it will give you a relationship between forces and acceleration of a particle. At the start of this chapter, we quickly review the Newton's laws of motion, and we said that the second law of motion is basically the pillar of dynamics, because all the kinetics and all three methods of kinetic analysis are based on this second law of motion, which states that if you have a particle on which various forces are acting, the total amount of unbalanced force that is acting on the particle will move that particle with some acceleration in the direction of that unbalanced force. The magnitude of acceleration is proportional to A, or you can write F equal to ma. So this is basically the equation of motion, which says that whatever unbalanced force is acting on the particle, as a result of that unbalanced force, the particle is moved in the direction of that unbalanced force with some acceleration. So आपकी जो equation of motion थी वो हमने last time देखी थी. This equation of motion was summation F equal to ma. Then we wrote this equation of motion in terms of its rectangular components in the last lecture. That is, we resolved these forces in terms of its components along x, y, and z axis, summation fx, summation fy, and summation fz. Similarly, we resolved this acceleration in terms of its components along the x, y, and z axis as ax, ay, and az. Now, since it was a vector equation, so from that vector equation, we got three component equations which are being written along each axis, that is summation fx equal to max, समेशन एफ वाई इक्वल टू एम ए वाई एंड समेशन एफ जी इक्वल टू एम ए वी. तो ये वो इक्वेशन ऑफ मोशन थी जो कि लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी और उसको रिजॉल्व किया था along the x, y, and z axis. Now in today's lecture, we are going to start with this equation of motion, but we are going to write it in terms of normal and tangential coordinate system. As far as the theory of this topic is concerned, it is very much similar to the theory of rectangular components, except that we are going to use NTB coordinates instead of x, y, and z coordinates. तो उसके बाद जो कल वाला हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इसी एंटी कोऑर्डिनेट्स को कंप्लीट करेंगे. थोड़ा सा कल हम बात करेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की, और फिर कल की क्लास में जो है वो क्विज नंबर 1 भी जो है वो आपका कंडक्ट होगा. Okay, starting with today's lecture, let us consider a particle which is traveling along this curve as shown to you in the figure. At any instant, this particle is located at position P as shown to you in the figure. This particle is acted upon by a total unbalanced force, summation F, which is being resolved into its components along the tangential, normal, and binormal axis. Now, just a quick review of this axis system, ताकि आप थोड़ा सा, वैसे तो काइनेमैटिक्स में आपने सारी एक्सिस पढ़ी नहीं है, जस्ट क्विकली इसको हम रिव्यू करते हैं. हमने ये एंटी एक्सिस डिफाइन किस तरह की थी. हमने कहा था कि लेट अस सपोज कि हमारे पास एक कर्व पाथ है एंड द पार्टिकल इज ट्रेवलिंग अलोंग दिस कर्व पाथ. At any particular instant, suppose this particle is located at position P. आप ये axis define किस तरह करते थे? The tangential axis या T axis is being defined tangent to the curve at that particular instant. So आपके पास ये tangent to the curve है. So this axis is being defined as the tangential axis. The positive direction of this tangential axis was defined in the direction of increasing s. So the particle is moving in this direction, so s is increasing in this direction. So accordingly, this is going to be the positive direction of this tangential axis. That positive direction was designated by the unit vector ut. Similarly, the second axis, which was the normal axis, वो हम किस तरह define करते थे? It is the axis which is being defined perpendicular to the tangential axis at that instant. So आपने perpendicular to the tangential axis आपने एक axis define करनी, which is this normal axis. The positive direction of this normal axis is always going to be from that particle towards the center of curvature. तो इस curve का जो कि center इस तरफ है, so accordingly this is going to be the positive direction of normal axis. And that positive direction was designated by unit vector un in a similar way जिस तरह आपने ut define किया था as a unit vector along the tangential axis. So इस n और t axis को जब आप मिलाते हैं तो जो plane आपके पास आता है, that plane is basically termed as the anti-plane. Now in case of the xyz coordinate system, suppose मैं आपसे कहता कि x और y axis आपने define कर दी और उनको मिला के आपके पास xy plane आ जाता है. In order to define the third axis, which was the z axis in that case, वो z axis आप किस तरह define करते थे? It is going to be an axis which is
परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई प्लेन। बिल्कुल उसी तरह आपके पास ये जो एंटी प्लेन आए इसके परपेंडिकुलर आप थर्ड एक्सिस डिफाइन करते हैं, विच इज बेसिकली द बाइनॉर्मल एक्सिस, या जिसको हम बी से डिनोट करते हैं यूजिंग यूनिट वेक्टर यूबी टू डिजिग्नेट इट्स पॉजिटिव डायरेक्शन। तो आपके पास ये तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस आ जाती हैं, टेंजेंशियल एक्सिस, नॉर्मल एक्सिस, और इस एंटी प्लेन के परपेंडिकुलर आपके पास थर्ड एक्सिस आ गई थी, विच वाज द बाइनॉर्मल एक्सिस। So coming to today's topic, you have a particle which is traveling along a curved path. Why it is traveling along this curved path? Because it is being acted upon by an unbalanced force which is being resolved into its three components: summation ft along the tangential axis, summation fn along the normal axis, and summation fb along the binormal axis. So as per that equation of motion, which is summation f equal to ma, we are going to resolve this force into its three components along the tangential axis, normal axis, and binormal axis. Similarly, we are going to resolve this acceleration in terms of its three components: tangential axis, normal axis, and binormal axis, which is MAB. So overall, since it is a vector equation, it means that the individual components on both sides of the equation must be equal to each other. It means कि जहाँ जहाँ आपको ut नजर आ रहा है उसको आप equate कर देंगे, that is summation ft should be equal to mat. It will give you the first component equation from this vector equation. Similarly, when you apply or when you compare the coefficients on both sides of the equation along the normal axis, you are going to get this second equation, which is summation fn equal to man. Now, since the particle is constrained to move along the anti-plane only, therefore this term, which is MAB, should be equal to 0 because the particle is moving within the anti-plane. Therefore, the third equation would become summation FB equal to 0. Now, this summation FB equal to 0 does not mean that there are no forces which are acting along the binormal axis. Rather, forces would be acting along the binormal axis. However, there isn't going to be any unbalanced force acting along the binormal axis. In other words, आपकी जितनी भी forces binormal direction में act कर रही होंगी, they are going to be balanced. They are going to balance each other. In other words, this particle would be in equilibrium along the binormal axis. So these are the three component equations, 1, 2, and 3, that can be used for the solution of problems involving kinetics of a particle in terms of anti-coordinate system. इसमें आपने एक बात का ख्याल रखना है कि this equation of motion gives you a relationship between forces and acceleration. However, अगर आपको acceleration और velocities वगैरह का relationship चाहिए, तो then you have to use kinematics, जो कि हमने chapter number 12 में पढ़ा था. मसलन आपसे अगर मैं कहूँ AT क्या होता था, AT was basically v dot, और AT basically represents the चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी v. अगर आपके पास एक पार्टिकल के मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी में इंक्रीज आ रहा होता था, तो देन at एंड v आर गोइंग टू बी इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज टुवर्ड्स द पॉजिटिव t एक्सिस. इसी तरह अगर इस पार्टिकल के मैग्नीट्यूड में डिक्रीज आ रहा होता था, तो देन इन दैट केस at एक्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, दैट इज टुवर्ड्स द नेगेटिव t एक्सिस. इसके अलावा आपके पास जो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन होता था, an by formula this to v square over rho, where v is the velocity of this particle and rho is the radius of curvature, and the direction of this normal component is always going to be towards the center, that is towards the positive n axis. यही आपके पास जो normal acceleration है, इससे पहले आप इसको ऐसा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के तौर पे भी फिजिक्स में पढ़ते चले आए हैं. तो दिस an which is centripetal or normal acceleration is basically the acceleration component which is directed towards the center. इसके अलावा आपके पास जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे, तो हमने उससे रेलेवेंट न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे कि जब जब आपके पास चूंकि हर इंस्टेंट पे टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन which is this at and velocity lies along the same axis which is the tangential axis, so straight line kinematics के जितने भी आपके फॉर्मूले थे, they can be applied on a particle which is also traveling along a curved path, but along the t axis आप वो तमाम straight line axis वाले फॉर्मूले अप्लाई कर सकते थे, जिसमें आपके वो तीन जनरल इक्वेशंस भी आ जाती हैं और तीन कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशन भी आ जाती हैं. यानी अगर आपके पास at जो है वो टाइम के हिसाब से वेरी कर रहे हैं, तो आप वो तीन जनरल इक्वेशंस अप्लाई कर सकते हैं along the t axis. इसी तरह अगर at कांस्टेंट है, तो आप कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशंस भी t axis के along जो है वो अप्लाई कर सकते हैं. Okay, so that was the overall theory of that topic. Now, since at, which represents v dot or dv over dt, it represents the time rate of change in the magnitude of velocity. So if ftx in the direction of motion, the particle will speed up, otherwise the particle is going to slow down. In other words, वही जब हम कह रहे हैं कि आपके पास जब जब at और v सेम डायरेक्शन में आ जाए, इट मीन्स के पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहे हैं या वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में इंक्रीज आ रहा है. इसी तरह अगर at और v एक दूसरे के ऑपोजिट आए, तो उसकी वजह क्या है कि पार्टिकल जो है वो स्लो डाउन हो रहा है. वो स्लो डाउन क्यों हो रहा है? बिकॉज आपके पास जो अनबैलेंस फोर्स है वो उसको स्लो डाउन कर रही है, बिकॉज दैट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव t एक्सिस. Similarly, an, which represents v square over rho, time rate of change in the direction of velocity, since this vector is always at towards the positive n axis, that is towards the
center of curvature. Therefore, this Fn is sometimes known as the centripetal force as well. So आपके पास ये जो Fn होता है जो कि centripetal acceleration cause कर रहा होता है, ये basically centripetal force कहलाती है, जिस तरह आप इससे पहले physics में करते चले आए, because it is acting towards the center. So ये total theory थी इस topic की. The theory is same, that is how to apply this equation of motion along the normal and tangential axis. So आप forces को भी resolve करेंगे anti b axis के along, accelerations को भी resolve करेंगे और उसके बाद individual components को equate कर देंगे, तो आपको 3 equations मिल जाएंगी जिनको solve करके आप मुख्तलिफ forces को accelerations के साथ relate कर सकते हैं. So any question relevant to the theory of this topic जो आप पूछना चाहें? No, sir. Okay, so moving to this slide, which involves problems and examples relevant to this topic. Some of them are going to be solved today. The remaining are going to be solved tomorrow. और जो कल भी solve ना हो सके उनको हम as a non-submitted homework के तौर पे जो है वो assume कर सकते हैं. So we are going to start with the first example of this topic, which is example 13-7. Now it is a very interesting example because it will check your concepts of kinematics in terms of anti-coordinate system. थोड़ा सा इसको गौर से देखें और इसको हम explain भी बड़ी तफसील के साथ करेंगे. I hope कि example 13-7 की slide हर एक को visible है, नजर आ रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now first of all, reading the statement of this example, you have a disk which is this D shown to you. So हम इस disk की बात कर रहे हैं. This disk has a mass of 3 kg and it is attached to the end of a cord as shown to you in the figure. So this disk is attached to the end of the cord from this point, whereas the other end of this cord is attached to a ball and socket joint connected to a center of a platform. तो आपने इस डिस्क को center of the platform के साथ connect किया है using a cord which is shown to you here. So ये आपने इस डिस्क को center of the platform के साथ जो है वो connect कर दी है. If the platform is rotating rapidly, now थोड़ा सा इसके अल्फाज पे गौर करें. आपके पास ये जो प्लेटफॉर्म है, it is rotating rapidly. अगर मैं इसके टॉप व्यू देखूं, so from this top view, अगर मैं इसको देखूं, the platform is rotating rapidly in a counterclockwise direction. आप करते क्या है कि आप इस डिस्क को रेस्ट के साथ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो रिलीज करते हैं. सो द प्लेटफॉर्म इज रोटेटिंग रैपिडली इन अ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड यू आर प्लेसिंग दिस डिस्क फ्रॉम रेस्ट ऑन दिस प्लेटफॉर्म. ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द डिस्क एंड द प्लेटफॉर्म, आहिस्ता आहिस्ता हर जो है मोशन के साथ, प्लेटफॉर्म के हर मोशन के साथ, द स्पीड ऑफ द डिस्क इज गोइंग टू इंक्रीज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द डिस्क एंड द प्लेटफॉर्म. ओके, नाउ इफ आई आस्क यू कि अगर इस डिस्क और प्लेटफॉर्म के बीच में फ्रिक्शन ना होती तो फिर मोशन हमारे पास डिस्क का किस तरह का हो रहा होता? कोई जवाब दे सकता है? सर डिस्क स्टेशनरी रहती है अपनी जगह पे, वो फ्रिक्शन की वजह से उसके साथ मूवमेंट कर रही है. That's correct, because अगर फ्रिक्शन ना होती और मैं डिस्क को इस प्लेटफॉर्म पे प्लेस करता था, डिस्क वुड रिमेन स्टेशनरी और प्लेटफॉर्म अपने उसी सपोज 1000 आरपीएम पे घूम रहा था, तो 1000 आरपीएम पे जो है वो रोटेट करता रहता. लेकिन चूंकि डिस्क और प्लेटफॉर्म के बीच में फ्रिक्शन मौजूद है, which has a coefficient of friction of 0.1, so हर मोशन के साथ प्लेटफॉर्म के फ्रिक्शन की वजह से इस डिस्क की स्पीड जो है वो इंक्रीज हो रही होगी. You need to find out the time it takes for the disk to reach a speed great enough to break the cord. के आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह हमने कहा कि हर रगड़ के साथ इस प्लेटफॉर्म की डिस्क की स्पीड जो है वो इंक्रीज हो रही होगी फ्रिक्शन की वजह से, तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते इस डिस्क की स्पीड इतनी बढ़ जाएगी कि ये कॉर्ड जो है वो टूट जाएगा. यू नीड टू फाइंड आउट दैट टाइम टी, जिसमें जब आप रेस्ट से रिलीज करते हैं और ये कॉर्ड कितनी देर में जो है वो टूटता है. द मैक्सिमम टेंशन विच दिस कॉर्ड कैन सस्टेन इज 100 न्यूटन. तो इस कॉर्ड में जब टेंशन मैक्सिमम टेंशन के बराबर पहुंचेगी तो दैट कॉर्ड इज गोइंग टू ब्रेक एट दिस पॉइंट. द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द डिस्क एंड द प्लेटफॉर्म इज गिवन टू यू एज 0.1. सो आई होप के द क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. किसी को क्वेश्चन की स्टेटमेंट के हवाले से कोई डाउट तो पूछ लें, क्यूरी है कोई पूछ लें, अदरवाइज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. अभी हम इसी स्लाइड पे स्टार्ट करेंगे. कुछ एक दो चीजें जो आपसे डिस्कस करनी है, उसके बाद फिर हम जो है उसका डिटेल सोल्यूशन देखेंगे. So let me clear the screen again. Okay, अभी हमने जिस तरह बात की कि सबसे पहले हमने इसकी फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो बनानी होती है. So in order to draw the free body diagram, let me first of all define the axes which are going to be involved here. The first axis which is involved here is the axis जिसका मैं define करता हूँ
to be tangent to the curve. So सपोज डिस्क इस पोजीशन में मौजूद थी, इस फिगर में जो दिखाया गया है, तो उसके हिसाब से टेंजेंशियल एक्सिस मेरे पास जो है वो ये वाली एक्सिस आ जाती हैं, जो कि मैंने टी एक्सिस के तौर पे शो की हैं. द सेकंड एक्सिस व्हिच इज इन्वॉल्वड हियर इज द नॉर्मल एक्सिस. द नॉर्मल एक्सिस इज गोइंग टू बी टुवर्ड्स द सेंटर. तो अकॉर्डिंगली हमारे पास टुवर्ड्स द सेंटर नॉर्मल एक्सिस आ जाएंगी. ये एन एक्सिस आ गई. व्हाट इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ बायनॉर्मल एक्सिस? एनीवन वॉलंटियर? दोनों के एंटी प्लेन के परपेंडिकुलर. सो आपके पास ये एंटी प्लेन के परपेंडिकुलर तीसरी एक्सिस आ गई, विच इज द बायनॉर्मल एक्सिस. तो दीज आर द थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, टी एक्सिस, एन एक्सिस एंड बी एक्सिस, जो कि हम इस्तेमाल करेंगे फॉर आवर एनालिसिस. एक्सिस के हवाले से कोई सवाल जो आप पूछना चाहें, कोई क्यूरी हो आपकी? ओके, सो कोई क्यूरी नहीं है. कमिंग टू द फ्री बॉडी डायग्राम, एक्सिस के बाद वी नीड टू इंक्लूड द फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग ऑन दिस डिस्क. The first force is going to be the weight of the disk. Since whichever coordinate system we are considering, the weight is always going to act in a downward direction. So as per this figure, this is going to be the weight of this disk, which would be acting downward, that is towards the negative b axis. Clear है? यहाँ तक weight हमने draw कर ली है. Yes, sir. Okay, now हम disk को isolate करेंगे. Once we are isolating this disk, it means that we are going to remove each and every connection of this disk with the surrounding. ये प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट हुई हुई है. So once you are removing the platform, आपको कौन सी रिएक्शन फोर्स मिलेगी? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मिलेगी. डायरेक्शन क्या होगा उस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का? पॉजिटिव बी. Towards the positive b axis. So this is going to be that normal reaction force, जिसको से मैं nc के साथ जो है वो डिनोट करता हूँ. And since the disk and platform and since the disk is rotating in the anti-plane only, it means that once I am applying the equation summation fb equal to 0, that is I am summing all the forces along the binomial axis, I am going to get the equation of the form w with a negative sign, which is acting towards the negative axis, plus nc should be equal to 0. In other words, w should be equal to nc, or in other words, this disk is in static equilibrium as far as binomial axis or binomial direction is concerned. यहाँ तक clear है हर एक को? जी सर. Yes, sir. Okay, any other force which you need to include here? आप इस डिस्क को आइसोलेट जब कर रहे हैं, so basically the next connection is the connection with the cord. So once you are removing this cord, अभी cord की बात कर लेते हैं. Once you are removing this cord, what force you are going to get and in what Tension. direction? Yes, it is the tension in the cord, and the direction of this tension is going to be towards the n axis. So आपने n axis के along इस force को represent कर लिया, which is the tension in the cord, which is T. यहाँ तक clear है हर एक को? सर ये डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल फोर्स कौन से कहाँ पे? देखें, नॉर्मल फोर्स क्यों आई है? बिकॉज वी आर कंसिडरिंग और वी आर रिमूविंग द कनेक्शन ऑफ दिस डिस्क विद द प्लेटफॉर्म. हम डिस्क को आइसोलेट कर रहे हैं तो प्लेटफॉर्म हम रिमूव कर रहे हैं. वंस वी आर रिमूविंग द प्लेटफॉर्म, तो डिस्क और प्लेटफॉर्म का जो आपस में जो कॉन्टेक्टिंग सरफेस है वो कौन सा है? वो प्लेटफॉर्म की एक्सिस है या डिस्क की एक्सिस है? तो नॉर्मल फोर्स आपकी एक्ट करेगी परपेंडिकुलर टू दैट कॉन्टेक्टिंग सरफेस. तो इसलिए आपके पास ये एनसी आया है. यानी अगर मैं इसका फ्रंट व्यू देखूं, तो ये आपके पास प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर आपने ये जो है वो डिस्क रखी हुई है. तो आप जब प्लेटफॉर्म को रिमूव करेंगे तो आपके पास कॉन्टेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर एक फोर्स आएगी, जिसको आप एक तरह से एनसी फोर्स कह रहे हैं, विच इज एक्टिंग ऑपोजिट टू द वेट. ठीक है? ओके सर, थैंक यू. तो हमने बात की है वेट की, हमने बात कर ली नॉर्मल फोर्स की, हमने बात कर ली टेंशन की. इसके अलावा आपके ख्याल में और कौन सी फोर्स है जो हमें फ्री बॉडी डायग्राम पे शो करनी चाहिए? फ्रिक्शन फोर्स आ गई. सो व्हाट शुड बी द एक्सिस अलोंग व्हिच दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वुड बी एक्टिंग? टी. टी एक्सिस. शुड इट बी टी एक्सिस और नेगेटिव टी एक्सिस? नेगेटिव टी एक्सिस. Negative. चलिए, एक बात तो तय है कि दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वुड बी एक्टिंग अलोंग द टी एक्सिस. पॉजिटिव या नेगेटिव के हवाले से थोड़ी सी हमें डिस्कशन यहाँ करनी पड़ेगी. तो पॉजिटिव की एक्सिस एक्ट करेगी क्योंकि वो जस्ट एक मिनट वेट करें. लेट मी हैव अ लिटिल डिस्कशन उसके बाद, ताकि जिनके कंफ्यूजन है वो भी दूर हो जाएं.
हमने जब फ्रिक्शन फोर्स को स्टैटिक्स में भी कवर किया था और प्रोबेबली हमने इससे पिछले टॉपिक में भी जब फ्रिक्शन फोर्स देखी थी, कैन एनी वन ऑफ यू प्लीज टेल मी इन व्हाट डायरेक्शन दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वुड एक्ट? Opposite to that of the motion. Opposite to That of the motion. opposite to that of motion. Is this definition complete? Sir, relative motion. Relative motion. So the force of friction would always act in a direction opposite to the relative motion between the two surfaces. Now, in majority of problems involving in statics or the problems which we have solved in the very first topic of this chapter, आप जब भी फ्रिक्शन देख रहे होते थे तो ज्यादातर जगहों पे आपके पास एक सरफेस स्टेशनरी होता था और दूसरा मूव कर रहा होता था, तो जजिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स वाज इजियर. थोड़ा सा मैंने एक खाली स्लाइड यहाँ डाली है जस्ट टू अंडरस्टैंड यू कि फ्रिक्शन फोर्स का रिलेटिव मोशन के हिसाब से क्या डायरेक्शन होता है. थोड़ा सा इस फिगर को गौर से देखें. मेरे पास एक स्टेशनरी सरफेस है जिसके ऊपर मेरे पास एक पार्टिकल है जिसको मैं कहता हूँ, सपोज आई हैव अ पार्टिकल विच इज दिस पार्टिकल ए, and this particle is moving with a speed of say 10 meters per second towards the right, and I am placing another particle which is say particle B. This particle B is having a speed of 5 meters per second towards the right. Just आपको relative motion का concept देने के लिए. So you have two particles, block A and block B, which are placed one over the other. Block A is moving towards the right at a speed of 10 meters per second, while block B is moving towards the right with a speed of 5 meters per second towards the right. मैं आपसे कहूं कि you need to determine the relative velocity of B with respect to A. Do you remember the last topic which we covered in chapter number 12? What is this relative velocity VBA? Can you identify it? It is VB. It is VB minus VA, isn't it? So the relative velocity is VB minus VA. So अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ, it is going to be 5i minus, if I'm using the conventional XY coordinate system, so it is going to be 5i minus 10i, and that is equal to minus 5i meter per second. ऐसा ही है? Yes, sir. Okay. अब ये relative velocity of B with respect to A, इसका मतलब क्या था physically? As an observer, if you are going to consider yourself to be an observer standing on block A, आपको B का मोशन किस तरह का नजर आएगा? ठीक है, relative velocity से मुराद ये है कि if as an observer you are standing on block A, आपको block B जो है वो एक तरह से पीछे की तरफ जाता हुआ नजर आएगा. ऐसे ही है? Yes, sir. ये 5i माइनस 5i तो यही शो कर रहे हैं ना कि एज एन ऑब्जर्वर बीइंग स्टैंडिंग ऑन ब्लॉक ए, आपको ब्लॉक बी जो है वो 5 मीटर्स पर सेकंड टुवर्ड्स द लेफ्ट की तरफ जाता हुआ नजर आएगा. हालांकि ओरिजिनली आपके पास ये ब्लॉक जो है इसका एब्सोल्यूट मोशन देखो तो इट इज 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स द राइट, बट द रिलेटिव मोशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कि आपको ये ब्लॉक बी ए के रेफरेंस से लेफ्ट की तरफ या नेगेटिव एक्सिस की तरफ जाता हुआ नजर आएगा. यहां तक पॉइंट क्लियर है एक को? Yes, sir. ओके, सो अगर मैं आपसे कहूं कि जरा ब्लॉक बी की फ्री बॉडी डायग्राम बना दें, ब्लॉक बी की फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए आप करेंगे क्या कि डब्ल्यू बी जो है दैट इज गोइंग टू एक्ट डाउनवर्ड. सो डब्ल्यू बी आपके पास हम ब्लॉक बी की फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं. सो डब्ल्यू बी इज गोइंग टू एक्ट डाउनवर्ड. दिस एन ए नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू ब्लॉक ए. जब आप ब्लॉक ए को रिमूव करेंगे इसकी वजह से आपके पास एन ए जो है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा. और कोई फोर्स जो आप इस ब्लॉक बी की फ्री बॉडी डायग्राम पे बनाना चाहें? Friction force, sir, towards the right. फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या आएगा? Towards the right. टुवर्ड्स द राइट. वजह क्या है कि द मोशन अगर हम कंसीडर करें, सिंस ब्लॉक बी's relative motion with respect to block A is towards the left, so accordingly the direction of force of friction for that block B is going to be towards the right. तो आपके पास force of friction का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आ जाएगा because the force of friction always acts in a direction opposite to the relative motion between the two surfaces. So the term relative is important here. You are drawing the free body diagram of block B. The relative motion of B with respect to A is towards the left. So accordingly, the frictional force is going to act towards the right. Is this point clear to all of you? Yes, sir. Okay. So now using this concept, coming back to our original problem, example 13-7, आपके पास प्लेटफॉर्म जो है वो रैपिडली रोटेट कर रहे हैं इन अ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन.
आप डिस्क को रेस्ट से रिलीज करते हैं। चलिए सपोज मैं कहता हूं ये प्लेटफॉर्म 1000 आरपीएम से रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट एक वैल्यू देने के लिए मैंने कहा ये प्लेटफॉर्म 1000 आरपीएम से रोटेट कर रहे हैं। आप डिस्क को रेस्ट से रिलीज करें या 0 आरपीएम के साथ आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो रख रहे हैं, इट मींस के आपको ये डिस्क प्लेटफॉर्म के हवाले से अगर देखें तो विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म डिस्क किस तरफ जाती हुई नजर आएगी? सर नेगेटिव इस डायरेक्शन में या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाती हुई नजर आएगी, बिकॉज वो 0 आरपीएम है, वो 1000 आरपीएम है, तो प्लेटफॉर्म के रेफरेंस से डिस्क आपको पीछे की तरफ जाती हुई जो है वो नजर आएगी। सो अकॉर्डिंगली आपके पास जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज गोइंग टू एक्ट इन दिस डायरेक्शन व्हिच इज बेसिकली द पॉजिटिव टी एक्सिस। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर ये जो पिछले नेगेटिव टी एक्सिस मूवमेंट करी है उसकी वजह से, इनर्शिया की वजह से कर रही है। इनर्शिया की वजह नहीं कर रही, आप रिलेटिव मोशन देख रहे हैं ना। डिस्क और प्लेटफॉर्म का रिलेटिव मोशन अगर मैं देखूं तो उसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर मैं प्लेटफॉर्म को स्टेशनरी कर लूं तो डिस्क एक तरह से प्लेटफॉर्म के ऊपर इस तरफ जाती हुई नजर आएगी विद रेफरेंस टू द प्लेटफॉर्म, बिकॉज प्लेटफॉर्म की स्पीड 1000 आरपीएम है, डिस्क जो है वो आप 0 आरपीएम से उसके ऊपर प्लेस कर रहे हैं, तो इट मींस कि डिस्क एक तरह से आपको पीछे की तरफ मूव होती हुई नजर आएगी। अब डिस्क अगर इस तरफ जा रही है तो अकॉर्डिंगली आपके पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में आनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल वही चीज जो अभी हमने यहाँ रिलेटिव मोशन के हवाले से डिस्कस की है। और सर एजम्पशन ले सकते हैं, assumption कौन सी? कोई भी डायरेक्शन हम ले सकते हैं। देखिए assumption कोशिश करें ना करें, कर भी लेंगे तो आपको 80 की वैल्यू उसके अकॉर्डिंगली जो है वो नेगेटिव मिल रही होगी। ठीक है, और तो सारी फोर्सेस नोन है, सिर्फ एक ये फोर्स अननोन है, तो assumption करेंगे भी तो आपको उससे थोड़ा सा 80 की वैल्यू गलत मिल रही होगी और कुछ नहीं होगा, नेगेटिव साइन के साथ। सर थोड़े से तो मार्क्स नहीं काटेंगे ना। चलिए मार्क्स की बात बाद में आएगी, फिलहाल मुझे ये बताएं कि फ्रिक्शन के डायरेक्शन के हवाले से किसी को कोई डाउट तो नहीं है? Is everyone clear about the force of friction and its direction? यस सर। चलिए अब हम थोड़ा सा सोल्यूशन, डिटेल सोल्यूशन की बात करते हैं। सो मूविंग ऑन टू द डिटेल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, ये वो फ्री बॉडी डायग्राम है जो कि अभी हमने उसी डिस्क पे बनाई थी, इसको क्लियर करके हमने यहाँ बना दी है। यू हैव टू फोर्सेस W and NB acting along the binomial direction, T is acting along the normal axis, FF which is the force of friction, it is acting towards the tangential axis. So applying the equation of motion along the binomial axis, ND minus W should be equal to 0. In other words, ND which is the normal direction of the platform, इसको आप ND कह लें, NP कह लें, जो भी आप कहना चाह रहे हैं, that comes out to be the weight equal to the weight of the disc 29.43 Newton. Okay, now in the next step, applying the equation of motion along the tangential axis, kindly जिसके माइक में से आवाजें आ रही हैं काइंडली माइक ऑफ कर दें, बाकी लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, बल्कि सारे लोग माइक ऑफ कर दें, जब कोई क्वेश्चन करना तो आप माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। Okay, so summation Ft equal to MAT, आपने अप्लाई की इक्वेशन ऑफ मोशन को along the tangential axis, since there is only one force which is acting along the T axis, it is the force of friction, so 0.1 ND should be equal to MAT, M आपके पास 3 given है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। Similarly, applying the equation of motion along the normal axis, the force which is acting along the normal axis is the tension in this chord, so T should be equal to 3AN, and we know that AN is basically equal to V square over rho, और rho हमारे पास यहाँ 1 मीटर के बराबर है, so 3V square over 1, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। Now the unknowns which are involved here is this 80, this is not known to us yet, the tension which is not known to us, and the velocity which is again not known to us, along with ND, 4 अननोन्स हमारे पास जो है वो नजर आ रहे हैं। सॉरी, ND हमें नोन है, तो 3 अननोन्स हमें नजर आ रहे हैं, AT, T and V. Now we need, in the statement it was given that we need to find out the time जिस पे जाके ये कॉर्ड ब्रेक होता है, और जिस तरह भी डिस्कशन हुई है, इस डिस्क की स्पीड आहिस्ता आहिस्ता फ्रिक्शन की वजह से प्लेटफॉर्म के साथ इस डिस्क की स्पीड इंक्रीज होती चली जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इस डिस्क की स्पीड को इंक्रीज होने की वजह से इस कॉर्ड में टेंशन जो है वो T मैक्स के बराबर हो जाएगी, विच इज द मैक्सिमम टेंशन दिस कॉर्ड विच इज 100 न्यूटन। उस स्टेज पे जाके ये कॉर्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगी। सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट दैट क्रिटिकल स्पीड VCR, हम करेंगे क्या कि इक्वेशन नंबर 2 जो है इसमें टेंशन को मैक्सिमम टेंशन के बराबर जो है वो पुट कर देंगे, विच इज 100 न्यूटन। सो पुटिंग T इक्वल टू T मैक्स in equation number 2 would give us the critical speed of this disk to be equal to 5.77 meters per second. So this is basically that speed जिसके ऊपर जाके ये डिस्क जो है इसमें इतनी स्पीड हो जाएगी कि कॉर्ड में टेंशन जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी और कॉर्ड जो है वो
ब्रेक हो जाएगी। अकॉर्डिंगली आपने AT की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है विच इज 0.981 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूजिंग दिस इक्वेशन नंबर 1। तो आपको क्रिटिकल स्पीड भी मिल गई, आपको टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन भी मिल गया। नाउ आपने टाइम फाइंड आउट करना है। सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन AT, V and T? डू यू रिमेंबर द काइनेमैटिक्स साइड? Yes, sir. हमारे पास हमने जिस तरह अभी शुरू में भी कहा था कि सिंस at each and every instant AT and V are acting along the same axis, that is along the T axis, वो दोनों पॉजिटिव T या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव T की तरफ तो हो सकता है, लेकिन होंगे वो T axis के along ही। So you can apply all the formulae of rectilinear kinematics along the T axis। उसमें हमारे पास कुछ इक्वेशंस थी, जनरल काइनेमेटिक इक्वेशन 3 और 3 इक्वेशंस थी कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशन। व्हाई वी हैव अप्लाइड हियर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशन? क्या हमें कहीं गिवन है कि AT कांस्टेंट है या हम किस तरह सर वो फार्मूला से सर FT भी कांस्टेंट है, N भी कांस्टेंट है, तो इसलिए एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगी। दैट्स राइट। AT हमें मिल रहा है इक्वेशन नंबर 1 से, जिसमें मास कांस्टेंट है, फ्रिक्शन का कोफिशिएंट कांस्टेंट है, ND जो कि W के बराबर है वो भी कांस्टेंट है। इट मींस कि चूंकि तमाम चीजें कांस्टेंट है, देयरफॉर इट इज अ केस ऑफ कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सो वी कैन डायरेक्टली यूज द 3 इक्वेशंस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशन अलोंग द T एक्सिस। अब उसमें से जो इक्वेशन हमें रिलेट करती है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम को, इट इज दिस इक्वेशन विच इज v इक्वल टू v नॉट प्लस AT। हमें क्रिटिकल वेलोसिटी पता चल गई है विच इज 5.77। चूंकि आप डिस्क को रेस्ट से रिलीज कर रहे थे, इट मींस कि v नॉट आपके पास 0 है। जहां तक ताल्लुक AT का है वो आपने डिटरमिन कर लिया है, 0.981 इसकी वैल्यू है। सो द ओनली अननोन क्वांटिटी हियर इज द टाइम। सो वंस यू सॉल्व इट, द वैल्यू ऑफ टाइम कम्स आउट टू बी 5.89 सेकेंड। सो दिस इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ टाइम जिस पे जाके इस कॉर्ड में टेंशन मैक्सिमम होगी एंड द कॉर्ड इज गोइंग टू ब्रेक। जी, any question, any query relevant to this problem? No, sir. देखिए अब आपका ये जो रिलेटिव मोशन है ना, ये बड़ा क्रिटिकल है, क्योंकि प्रोबेबली आपके पास अगले कुछ प्रॉब्लम में या इवन हो सकता है कि XY डायरेक्शन में भी, ऑल्दो आपको ज्यादातर प्रॉब्लम्स ऐसे करवाए गए हैं जिसमें एक सरफेस स्टेशनरी था, लेकिन उसमें भी आपको एक सरफेस मूविंग और दूसरा जो है वो स्टेशनरी दिया जा सकता है। हमेशा आपने जब भी फ्रिक्शन की बात कर रहे हो तो खाली मोशन की बात नहीं करनी, आपने हमेशा रिलेटिव मोशन की बात करनी है एट दैट सरफेस, और उसके अकॉर्डिंगली आपने फ्रिक्शन का जो है वो डायरेक्शन जज करना होता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. So today we are going to stop at this point. We are not going to solve any other problem because already हमारे पास 12:10 हो चुके हैं। Probably आपका जो next numerical है वो कुछ लंबा है, that cannot be solved within the next 7-8 minutes. So we are going to stop here. हम